Good morning, students. In the previous lecture of complex numbers, we completed with the first exercise, जहाँ पे we have to convert a complex number in a plus ib का format and find the values of x, y, simplify the higher powers of iota. So I hope you have gone through the textbook numericals and practiced the numericals at home. Today I'll be starting with a very simple but important concept of the chapter where we have to find the square root of a complex number. See, generally अब तक till date we have calculated the square root of a real number. मान लो अगर 16 का रूट निकालना है तो you have written plus minus 4, right? But what if you are supposed to find the square root of a complex number? तो उसकी प्रोसेस जो है वो क्या है? तो let us start with the point. Let under the square root a plus ib square root of the given complex number is equal to one more complex number. रियल नंबर का स्क्वायर रूट अगर रियल है तो विल अज्यूम दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स. तो अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. अभी ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस जो है वो देखते जाओ. I'll say squaring on both sides. So now when I square on both sides, what do we get is a plus ib is equal to x plus iy का bracket square. Now keeping the LHS side as it is, we'll expand the RHS. A square plus 2ab plus b square. But what is I square value? We all know that I square is equal to minus 1. So minus y square. And I have told you many times कि जब कभी भी आप कोई भी एक आई स्क्वायर की वैल्यू या फिर अयोटा पावर्स की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हो तो उसका रीजन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा. नाउ a प्लस आई बी इज इक्वल टू, I'll combine the real parts, that is the parts which are independent of iota, and I'll separate the imaginary part. मतलब अभी क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो पूरा टर्म है, it is of the form real plus imaginary, and this is also real plus imaginary. So now can I say by comparing on both sides, real part is equal to real part, मतलब a is equal to x square minus y square, and imaginary part is equal to imaginary part, मतलब it is equal to 2xy. So we have calculated two equations in terms of x and y, and यहाँ पे you will have two constants which are directly given in the question paper. तो अभी क्या करना है, यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, यहां पे आई विल राइट यूजिंग दीज इक्वेशंस वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. कैसे निकालोगे वो मैं आपको न्यूमेरिकल में दिखाता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली एंड यू विल डायरेक्टली गेट द पॉइंट कि एक्चुअली एक्स एंड वाई कैसे निकालने हैं. बट इतना याद रखो, जब कभी भी आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है तो द बेसिक प्रोसेस इज यू हैव टू स्टार्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टेंट्स. अंडरस्टूड? ओके. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यूमेरिकल जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूं. All right. So now for 4 marks we have a very simple numerical question. ऐसा आएगा, find the square root of 7 plus 24i. ये न्यूमेरिकल आपको सीईटी में कैसा करना है उसका एक अलग से टेक्निक आपको दिखाऊंगा, एंड ये न्यूमेरिकल आप थ्योरी में कैसे करोगे उसकी प्रोसेस विल एक्सप्लेन ओवर हियर. So now I'll start with the assumption that
let under the square root 7 plus 24i is equal to x plus iy. Let us assume that this is equation number A. Now squaring on both sides. So यहां पे I have 7 plus 24i and इसका आप स्क्वायर कर सकते हो x square plus 2xyi plus I square y square. Substitute I square as -1, so it is x square plus 2xyi minus y square, and we'll write the reason since I square is equal to -1. अभी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट RHS में कंबाइन कर दो. ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी. एंड नाउ यहां पे आई विल से बाय कंपेयरिंग. आप कंपेयरिंग की जगह पे इक्वेटिंग भी लिख सकते हो. तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू imaginary. Now from this equation can we say 24 by 2 is equal to xy, and therefore xy is equal to 12. This is equation number B, this is equation number C. अभी क्या करना है, using B and C I have to find the values of x and y. But अगर आप अभी देखो कि ये इक्वेशन जो है it is in the form of a square minus b square equal to 7, and this is equal to ab is equal to 12. तो using these two equations how do you find the values of x and y? तो यहां पे हम लोग को एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है. एडजस्टमेंट क्या है, आप कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो. आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर डी. व्हाट डिड आई से, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. एंड नाउ पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर बी. तो यहां पे आई विल से पुट इक्वेशन डी इन इक्वेशन बी. तो व्हाट डू आई गेट, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज वाई, 12 upon x. So I'll directly square this, and this is equal to 7. Now cross multiply this. X power 4 minus 144 upon x square, जो यहां पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. Now shift that 7x square on the LHS equal to 0. So basically what did you get? A polynomial equation in form of a variable x. अभी हमें ये इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई. तो उसके लिए आपको और एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम. तो अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम है तो ये एम स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वेयर का स्क्वेयर है. 7m 144 equal to 0. Now basically this equation is a quadratic equation in terms of m. तो now shall we factorize this equation? मल्टीप्लीकेशन चाहिए -144 एंड एडिशन चाहिए -7. तो माई रूट्स विल बी -16 प्लस 9. सो यहां पे m कॉमन, m -16, 9 कॉमन, m -16 इज इक्वल टू 0. तो m -16 m plus 9 is equal to 0, and hence we have m is equal to 16 or -9. But now if you check what is m, it is x square. And कोई भी एक रियल नंबर का स्क्वायर अगर आप लो तो वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता. तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट सिंस m is equal to x square, therefore m cannot be equal to -9. And therefore we say m is equal to 16. तो m is equal to 16 मतलब x square is equal to 16, and if x square is 16, what is x? It is equal to plus minus 4. Are you getting it?
m इज इक्वल टू -9 की वैल्यू हम लोग ने क्यों डिस्कार्ड की? क्योंकि m इज रिप्रेजेंटिंग x स्क्वायर एंड कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आ सकता. तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज +-4. नाउ फ्रॉम दिस वैल्यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो बट y was equal to 12 upon x. So therefore, if x is +4, y is equal to 12 by 4 as 3, and if x is -4, then y will be equal to -3. So did we get the values of x and y? दो पेयर्स मिले हैं, क्योंकि जब भी आप रूट निकालते हो तो दो रूट्स आते हैं. तो दो रूट कब आएंगे? जब आपको x एंड y के दो पेयर मिलेंगे. नाउ देयरफॉर फ्रॉम a हम लोग ने क्या लिखा था a इक्वेशन में? 7 + 24i इज इक्वल टू x प्लस iy. तो नाउ एक एक करके ये पेयर इसमें सब्स्टिट्यूट करो. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i इज इक्वल टू 4 + 3i, ये पहला पेयर, और -4 - 3i. So the square root of the given complex number are either this or this. अभी मान लो आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करना है कि ये मेरा ट्रू है कि नहीं है, ये आंसर हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत है. तो क्या ऑप्शन यूज करोगे, क्या टेक्निक यूज करोगे? आप ये नंबर का स्क्वायर कर दो. तो अगर इसका स्क्वायर 7 + 24 आया तो दिस इक्वेशंस दैट यू हैव कैलकुलेटेड आर करेक्ट, एंड दिस इज नथिंग बट द हिंट फॉर सीईटी. तो यहां पे आई विल से फॉर सीईटी स्क्वायर द ऑप्शंस एंड वेरीफाई वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जिसका आपको रूट निकालना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द ऑप्शंस. मतलब जिस ऑप्शन का स्क्वायर आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, दैट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द स्क्वायर रूट. सी आप इसका स्क्वायर करो, आपको अगर वेरीफाई करना है तो डू दिस. a square plus 2ab plus b square. But what is I square? -1. So this is 24i minus 9. And what is 16 minus 9? 7. So it is plus 24i. तो इसका स्क्वायर ये है, तो इसका रूट ये है, and hence my equation is verified. So have you understood a very simple point? तो पहले आप ये वीडियो देख लो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 2-3 न्यूमेरिकल्स जो है वो दिखाऊंगा, सो दैट हमारे टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें आपको स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने हैं. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, माय क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i. तो विल स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स, बेसिक अजम्पशन. लेट दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. सी आपको x प्लस आई वाई की जगह पे अगर a प्लस आई बी लेना है तो भी आप ले सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट अ वेरिएबल. तो नाउ आई विल से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो यहां पे आ जाएगा ये ऐसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. बट सिंस i स्क्वायर इज -1 माइनस वाई स्क्वायर. सी आप 2-3 न्यूमेरिकल्स अगर बैक टू बैक सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि RHS का जो स्क्वायर है, इट इज दिस इक्वेशन. 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आप इसका स्क्वायर डायरेक्टली ये लिख सकते हो. बट एग्जाम में आप कोई भी स्टेप डायरेक्टली मत करो, बिकॉज दिस इज अ 4 मार्क्स न्यूमेरिकल एंड उसके आपको पूरे स्टेप्स के मार्क्स भी मिलने चाहिए. Now I'll say by comparing, और आपके लिए मैं और एक वर्ड लिख दूंगा यहां पे, इक्वेटिंग. सो अभी
3 is equal to x square minus y square, real is equal to real, and minus 4 is equal to 2xy. Therefore, xy is equal to minus 2, and hence y is equal to minus 2 by x. समझ में आ रहा है? इसको आप इक्वेशन नंबर A अज्यूम कर सकते हो. Now I'll substitute the value of y in this equation. So make this as B, write this as C. Put C in equation B. So what do we get is x square minus इसका स्क्वायर is equal to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. Shift the term of 3x square. And now जैसे हम लोग ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, पुट x square is equal to m. आपको m की जगह पे और कोई वेरिएबल चाहिए तो भी आप ले सकते हो. So m square minus 3m minus 4 is equal to 0. So factorization gives me minus 4 plus 1 is 0. m into bracket m minus 4, 1 into bracket m minus 4 is 0. So m minus 4, m plus 1 is 0. m is equal to 4 or m is equal to minus 1. But now you can say, but m cannot be equal to minus 1 and will take the value of m as 4. तो अगर m की वैल्यू 4 है तो therefore x square is 4 and hence समझ में आ रहा है. अभी ये x की वैल्यू आप इक्वेशन C में पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा y. सो यहां पे आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. फ्रॉम इक्वेशन C, y is equal to minus 2 upon x. तो if x is plus 2 then y will be minus 1. If x is minus 2 then y will be plus 1. And therefore मैं यहां पे ही कंप्लीट कर दूंगा. Therefore from A, square root of 3 minus 4i is x plus iy. तो x और y के पहले पेयर पुट करो. 2 minus i बिकॉज y की वैल्यू -1 है, और -2 प्लस i क्योंकि x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. सो योर सॉल्यूशन, योर आंसर, ये एक रूट है एंड दिस इज योर सेकेंड रूट. तो आप यूजिंग दिस मेथड, अ वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट 4 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का जो ऑलमोस्ट सब पेपर्स में पूछा जाता है, वो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो. सिंपल है. इज इट इजी? ओके. सो एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें टोटल 5 से 6 न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सी दैट एक्सरसाइज इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 यूनिट्स, जिसके 2 यूनिट हम लोग आज करेंगे. जिसका पहला यूनिट मैंने आपको यहां पे दिखाया, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है. दूसरे यूनिट में क्या करना है वो मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा. बट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द एक्सरसाइज 1.2 इज वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आप बोलोगे कि हम लोग ने हमारे 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, but the difference between the quadratics from 10th and 11th is, मान लो आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा, 8x square plus 2x plus 1 equal to 0, and the question says
solve the quadratic equation. So what is the first thing that you do is you try to find the factors. Multiplication should be +8 and addition should be +2. तो लॉजिकली देखा जाए तो ये इक्वेशन के डायरेक्ट फैक्टर्स तो नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या किया, तो ये इक्वेशन को कंपेयर किया बाय द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक. तो यहां पे आई विल से बाय कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c equal to 0. So what did you get? A is equal to 8, b is equal to 2 and c is equal to 1. Why did you compare this? Because we have already learned x is equal to a formula minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So let us substitute everything. -2 plus minus b square minus 4a into c, so it is 32 divided by 2a, which is 16. So I have x is equal to -2 plus minus. Now 4 minus 32 is -28 divided by 16. And now did you find the difference? Each and every quadratic from our 10th standard, उसमें क्या लॉजिक था, ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं. b² minus 4ac was either positive or it was equal to 0. Roots were either real and distinct or they were equal. But in 11th standard, in this quadratic, all the discriminant values will be negative या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे. एंड उसका जब आप रूट निकालोगे तो आपको आइदर प्रीवियस मेथड यूज करना है अगर यहां पे a प्लस IB का फॉर्म रहा तो, एंड अगर आपको रूट ऑफ -28 लिखना है तो हाउ डू यू राइट रूट ऑफ -28? एक सिंपल मेथड आपको सिखाता हूं. आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4 into -7. तो व्हाट इज 4 का रूट? 2. -7 जो है वो मैं ऐसे लिखूंगा 7 into -1. तो 7 का रूट तो नहीं पता, तो लेट अस कीप इट एज इट इज. बट हमें रूट ऑफ -1 तो पता है, इट इज अयोटा. तो नाउ रूट ऑफ -28 विल बी रिटन एज 2√7i एंड दिस इज अपॉन 16. अभी आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल के यहां पे डिवाइड कर दो तो यहां पे बच जाएगा 8. एंड देयरफॉर यू कैन मेक अ कंक्लूजन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द फर्स्ट वैल्यू. यहां पे अगर आप प्लस लोगे और if you take a minus sign, this is what you get. So now what do we conclude is, conclusion मैं यहां पे as a note के फॉर्म में लिखूंगा, if for any quadratic equation if b² minus 4ac is negative, then the roots are imaginary or in the complex form. See यहां पे प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा a प्लस IB का फॉर्म नहीं था, सो उसकी वजह से क्या हुआ, डायरेक्टली यू कुड फाइंड आउट द रूट. बट मान लो रूट के अंदर a प्लस IB का फॉर्म है और अगर आपको ये x निकालना है तो पहले आपको वो रूट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग द प्रीवियस मेथड. मतलब दिस न्यूमेरिकल बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट लकीली दिस इज अ रियल नंबर और वो नेगेटिव है, तो उसका रूट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली यहां पे आयोटा लिखना है. तो यूजिंग दिस मेथड you can find
द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ब्रैकेट में मैं आपके लिए लिख दूंगा द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज नेगेटिव। तो नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, सब क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर टोटल 4 न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ओके, तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल सॉल्व 2 मोर न्यूमेरिकल्स एंड एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसको हमने को सॉल्व करना है। So now as per the previous numerical, we'll compare this equation by the standard quadratic form, which is ax square plus bx plus c equal to 0. So a is 2, b is minus root 3 and c is equal to 1. So we'll directly start with x is equal to the formula b square minus 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अभी इसमें अगर हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 4ac। सो 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2a इज 4। तो ये हो गया रूट 3 प्लस माइनस root of minus 5 upon 4, and now root of minus 5 will be written as root 5i upon 4। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको अगर आप चाहो तो यू कैन राइट 2 डिफरेंट रूट्स, एक पॉजिटिव वैल्यू एंड सेकेंड वन विल बी द नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है? आपने ये चैप्टर का अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें हम लोग ने भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था जिसके हम लोग ने रूट्स निकाले थे -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। वैसा ही एक सेम न्यूमेरिकल हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सॉल्व किया था कि प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b एंड b स्क्वायर इक्वल टू a। तो वो दोनों जो इक्वेशंस थे a और b, दे वर नथिंग बट द रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर में मैथमेटिक्स के ये सिलेबस में यू विल गेट सच क्वाड्रेटिक्स वेयर द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब उसके जो सॉल्यूशन आएगा, उसका जो रूट निकलेगा, दैट विल बी एन इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 और एक न्यूमेरिकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अभी डायरेक्टली आई विल राइट a इज इक्वल टू 1 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3i कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू 10। तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 3i स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 2a। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट में। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? इट इज -1। तो ये -9 हो गया एंड -9 माइनस 40 इज -49 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको पहले ही बताया एवरी टाइम व्हेन यू राइट आई स्क्वायर वैल्यू यू हैव टू राइट -1। अभी सिंपल है, रूट ऑफ -49 की वैल्यू आएगी 7i अपॉन 2। अभी यहां पे सिंस बोथ द टर्म्स हैव एन आयोटा यू कैन कंबाइन द टर्म्स बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस। तो अगर मैंने पहले -3 प्लस 7i लिया तो x1 कैन बी रिटन एज अपॉन 2, दिस इज 4i अपॉन 2, मतलब माई फर्स्ट वैल्यू इज 2i। एंड सिमिलरली x2 इज इक्वल टू, इफ आई हैव अ नेगेटिव साइन तो -3 minus 7 gives me -10 and -10 upon 2 is -5i।
So now for this numerical, your roots x1 and x2 are 2i, minus 5i. So sometimes the values of a, b, c तीनों रियल रह सकते हैं. कोई क्वाड्रेटिक में a और c रियल है तो b आपको इमेजिनरी आएगा, या फिर a विल बी इमेजिनरी, b एंड c विल बी रियल. बट ओवरऑल आप ये चैप्टर का कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, इन ईच एंड एवरी केस द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, द डेल्टा वैल्यू, द बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर. मैं आपको और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं एंड बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आप आज के लिए घर पे होमवर्क के लिए करोगे. न्यूमेरिकल नंबर 4, ix स्क्वायर minus 4x minus 4i equal to 0. So as I said in the previous numerical, a, b, c ये तीनों में से तीनों रियल हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक रियल बाकी के दो इमेजिनरी, या फिर तीनों इमेजिनरी. तो एनी कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन टू यू. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ यू कंपेयर a इज इक्वल टू i, मतलब ये हो गया इमेजिनरी, b इज -4 तो ये रियल हो गया, एंड c इज इक्वल टू अगेन इट इज -4i, मतलब दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. तो अभी हमें सिर्फ ये नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं इन द फॉर्मूला. तो आई विल से x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 4 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, and it is 16i square divided by 2i. 2a मतलब 2i. But what is I square? It is -1. तो ये माइनस हो जाएगा, तो this is 16 minus 16 divided by 2i. Reason I square equal to -1. But what is 16 minus 16? It is 0. तो ये पूरी टर्म 0 हो गई. So we only have 4 upon 2i, which can be written as 2 upon i. Now this 2 upon i can be further simplified as, if you want, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को i से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर में आ गया i स्क्वायर, एंड इफ इट इज i स्क्वायर तो ये हो जाएगा -2i, क्योंकि i स्क्वायर इज -1. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2i. अभी आप सोचोगे कि यहां पे मुझे एक ही रूट क्यों मिला, तो डिड यू ऑब्जर्व बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पे 0 आ गया. तो अगर डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. बट सिंस देर आर आयोटा इन टर्म्स ऑफ a एंड c, तो यहां पे जो रूट्स आ गए वो इमेजिनरी है, but they are equal. So therefore यहां पे I'll say the roots of the quadratic equation are imaginary but equal. समझ में आ रहा है? मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सब क्वेश्चंस में नेगेटिव आएगा, बट लकीली यहां पे इट इज अ 0 नंबर. बट सिंस यू हैव अयोटा इन द डिनोमिनेटर, तो ऑटोमेटिकली इसके जो रूट्स है वो क्या आ गई, इमेजिनरी. तो x1 और x2 दोनों के वैल्यू सेम है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आ गया 0, बट दे आर इमेजिनरी रूट्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्वाड्रेटिक है, बट वो क्वाड्रेटिक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, या फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करना है, तो वो हम लोग मंडे के लिए रखेंगे. तो पहले आज आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के स्क्वायर रूट एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो क्वाड्रेटिक मैंने सॉल्व नहीं किए हैं वो क्वाड्रेटिक आप खुद से सॉल्व करो, उसका मुझे फोटो भेजो. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन डेफिनेटली हम लोग ऐसा ही एक वीडियो लेक्चर वो क्वेश्चंस के लिए बना देंगे. सो दिस इज इट फॉर टुडे. प्लीज गो थ्रू द वीडियोस प्रॉपरली, एंड आपने अगर एक्सरसाइज 1 के भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो उसका भी मुझे असाइनमेंट जो है वो आप ग्रुप पे दिखा सकते हो. थैंक यू.